we are going to discuss the topic that is mode of reproduction. Mode of reproduction. And there are two main mode of reproduction. One is asexual, and the second is sexual. Okay, and under these two, so asexual and sexual. And under the asexual, first of all, we need to understand what is the meaning of asexual reproduction and what is the meaning of sexual reproduction. So asexual reproduction has a name involve a sexual term, and sexual term related to the presence means the reproduction either take place with the help of reproductive organ or sex organ, or in the absence of sex organ. Okay, sex organ in the case of plant it is the flower, while in the case of animal there are a number of sex organ, male sex organ and female sex organ. In the form of animals, the testes and in male and ovary in the female. So if the reproduction takes place with the help of sex organ, that kind of reproduction is called sexual reproduction. While male, the reproduction takes place without sex organ, it is called asexual reproduction. And especially asexual reproduction takes place by simple mitosis, okay, by mitotic division or mitosis. Okay, इसके बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास पढ़ चुके होंगे. माइटोसिस, मियोसिस, ये दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं. बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय मियोसिस. Okay, and in asexual mode of reproduction, no gamete formation and fertilization take place. No gamete formation leads to fertilization. While in sexual mode of reproduction, it is just opposite. It involves gamete formation leads to fertilization. गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन, ये सारे टर्म आपको जो है आगे चल करके जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ाया जाएगा वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बट इससे पहले भी आप लोग क्लास 8 तक पढ़ चुके होंगे कि गैमेट जो है, जैसे मेल में क्या होता है, अगर एनिमल्स की बात किया जाए तो मेल में स्पर्म क्रिएट होता है, वो मेल गैमेट कहलाता है. फीमेल में एक सेल प्रोड्यूस होता है जिसको फीमेल गैमेट बोलते हैं. ऐसे ही प्लांट के केस में मेल में जो है pollen grain क्रिएट होता है. सो pollen grain इज द मेल गैमेट कैरिंग मेल गैमेट, while in the case of female the ovary having ovule which carry the female gamete. Okay, so gamete formation and fertilization process, these are the property of sexual reproduction, which is actually asexual mode of reproduction. And in our syllabus we will discuss about the asexual mode of reproduction by the help of various example. So asexual mode of reproduction which we will discuss in this chapter, these are types or methods. So we will discuss about various methods of asexual mode of reproduction. Like the first we will discuss about the fission, okay, in which we will also discuss there are two types, binary and multiple. We will also discuss binary and multiple. Okay, then body fragmentation, regeneration, then spore formation. Okay, so spore formation and one other asexual mode of reproduction also we will discuss, which is especially found in the case of the plants, vegetative propagation. So these are the various asexual mode of reproduction. Okay, fission, which is two type, binary fission and multiple fission. Body fragmentation, regeneration, spore
फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में 1 by 1 अभी स्टडी करेंगे। देन अंडर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन सिमिलर वे, बट when we will discuss in higher classes we will also study about the types of fertilization in sexual reproduction, and on that basis sexual reproduction may be divided into 3 categories, that is isogamous, anisogamous as well as oogamous। तो ये आप जो है on the basis of the motility and non motility of the gametes के बेस पर ये 3 कैटेगरी डिवाइड किया जाता है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर में जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल। ये दो में हम लोग स्टडी करेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेकेंड वी विल डिस्कस द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल, स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग। ओके, ह्यूमन बीइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the various asexual mode of reproduction 1 by 1, then we will discuss the sexual mode of reproduction। okay, so 1 by 1 हम लोग जो है इसको स्टडी करके जा रहे हैं। तो पहला हम जो asexual reproduction की बात करेंगे, फिजन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजन। Asexual reproduction, mode of reproduction। We are discussed there are two mode of reproduction. The first is asexual mode of reproduction. Under the asexual mode of reproduction, the first method of asexual reproduction we are going to discuss is the fission। fission। And the process of fission involve the splitting। Okay, process of fission involve the splitting of the cell in 2 parts, and especially the fission process of asexual reproduction is found in unicellular organism। मीन्स ये जो है unicellular organism में asexual mode of reproduction का मेथड होता है। So it is found only in unicellular। ओके, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक प्रोटोजोआ, स्पेशली जो प्रोटोजोआ होते हैं दे आर फॉलो द प्रोसेस ऑफ फिजन एंड बैक्टीरिया। इसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे इन प्रोटोजोआ। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, these are the two main example which reproduce asexually normally by the help of fission। fission के हेल्प से ही जो है नॉर्मली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये कैसे फिशन होता है? तो फिशन का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वह 2 तरह से, इसको हम लोग अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। ओके, so binary fission, it is the process in which the organism is split by mitosis। सिंपल माइटोसिस से जो है स्प्लिट होगा into 2 parts, into 2 pieces or 2 parts। ओके, और ये 2 पार्ट्स जो है डॉटर सेल कहलाएंगे, डॉटर और ऑफ स्प्लिट कहलाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन। और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। और इसमें देखिए प्रोटोजोआ में जो कॉमन बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे दैट इज अमीबा। ओके, तो अलग अलग प्रोटोजोआ में अलग अलग तरीके का बाइनरी फिशन होता है। कुछ में इरेगुलर होता है, मीन्स कोई भी प्लेन डिफाइन नहीं होता फॉर द डिवीजन, बट कुछ जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ होते हैं इनमें द प्लेन ऑफ डिवीजन ही फिक्स्ड होता है। बाइनरी फिशन अमीबा में होता है। तो हम बात करते हैं अमीबा में बाइनरी फिशन कैसे होता है। ये कि पहला जो स्टेज है इसमें आप देखेंगे ये जो सेल है अमीबा का, वो सेल में माइटोसिस प्रोसेस से ही जो है बाइनरी फिशन परफॉर्म होता है।
And mitosis process involve two stages. One is karyokinesis, then followed by cytokinesis. Karyokinesis and cytokinesis ये दो स्टेज में होता है. So karyokinesis and cytokinesis means first of all जो न्यूक्लियस होता है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स डिवीजन. तो सबसे पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में स्प्लिट होता है. तो यहाँ पे ये नॉर्मल सेल है, पेरेंट अमीबा है ये. यह पेरेंट अमीबा की बात करते हैं जो कि नॉर्मल सेल में दिखाई देगा. अभी ये रिप्रोडक्शन के मोड में, जब ये रिप्रोडक्शन के मोड में आएगा तो इसमें ये चेंजेस क्या होंगे. पहला चेंज जो दिखाई देगा आपको when it comes in the reproduction mode, तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा that nucleus becomes elongate. Okay, the nucleus becomes elongate. ये न्यूक्लियस जो है लंबा होगा पहले. तो न्यूक्लियस आपको स्फेरिकल दिख रहा था, वो न्यूक्लियस लंबा होगा एंड इसके अगले स्टेप में आपको दिखाई देगा the nucleus becomes split first. Okay, पहले स्टेप में न्यूक्लियर इलॉन्गेशन हो रहा है. न्यूक्लियर इलॉन्गेशन then the nucleus first split into two parts. Okay, along with that the body of amoeba also becomes elongate. amoeba की बॉडी जो है elongate हो रही है. इसी के साथ साथ सेल के अंदर के सेल ऑर्गेन्स भी बढ़ रहे हैं. then लास्टली क्या आप देखेंगे यहाँ पे जो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो पार्ट में, मीन्स कैरियोकाइनेसिस हो गया. यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया. और आफ्टर कंप्लीटिंग द कैरियोकाइनेसिस ये क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, मतलब जो सेल होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. तो जब सेल डिवाइड होगा तो ये आपका साइटोकाइनेसिस मालूम होगा, साइटोकाइनेसिस. एंड आफ्टर फॉलोइंग द साइटोकाइनेसिस इट विल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर अमीबी. ओके, टू डॉटर अमीबी विल बी और आफ्टर साइटोकाइनेसिस. तो इस तरह से ये जो है आपका वाटर अमीबी, दो डॉटर अमीबी जो है ऑपरेट होते हैं आफ्टर ईच बाइनरी फिजन इन अमीबा. अमीबा में जितनी बार बाइनरी फिजन होगा उतनी बार जो है एक पेरेंट अमीबा जो है दो डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है. एंड देयर इज नो डेथ ऑफ द अमीबा, नेचुरल डेथ ऑफ अमीबा टेक प्लेस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन. क्योंकि ये बाइनरी फिजन हमेशा करते हैं, इसलिए अमीबा का जो है नेचुरल डेथ नहीं होता है. नेचुरली अमीबा जो है डेथ नहीं करता है. अमीबा डेथ कब करेगा, एक्सीडेंटली या फिर एडवर्स कंडीशन में ही डेथ करता है. इसलिए अमीबा को जो है इमोर्टल ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है. ओके, अमीबा इज आल्सो नोन एज इमोर्टल, मीन्स ये जो है अमर है, ये कभी मरता नहीं है. तो क्योंकि ये इसका जो पेरेंट है वो उसकी बॉडी डिवाइड कर दो डॉटर सेल बना लिया, मतलब वही पेरेंट जो है डॉटर में कन्वर्ट हो गया, तो कभी डेथ नहीं करता है. नेचुरल डेथ इसमें अमीबा में नहीं होता है, केवल एक्सीडेंटली ये डेथ कर सकता है. अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अमीबा में ये जो बॉडी है अमीबा की ये इरेगुलर होती है. अमीबा के बारे में आप तो पढ़े होंगे दैट अमीबा हैज इरेगुलर बॉडी एंड इट कैन चेंज देयर इट्स शेप. अमीबा जो होता है वो अपना शेप चेंज करता रहता है. और शेप कैसे चेंज करता रहता है, बाय फॉर्मिंग सूडोपोडिया. ये चारों तरफ जो ये टूटे हुए सरफेस है वो सूडोपोडिया बना लेता है, जिसे सूडोपोडिया जो है फूड को पकड़ने में और लोकोमोशन मूवमेंट करने में हेल्प करता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए हेल्प करता है. तो इस तरह से आप देखेंगे क्या सूडोपोडिया बनाने के प्रॉपर्टी की वजह से ये अपना शेप हमेशा चेंज करता रहता है. और इसके बॉडी का कोई फिक्स प्लेन नहीं होता है. प्लेन का मतलब ये जैसे हम लोगों की बॉडी में जो है एंटीरियर पार्ट, अपर पार्ट ये, लोअर पार्ट ये लैटरल साइड हो गया, लेकिन अमीबा के बॉडी में कुछ ऐसा प्लेन दिखाई नहीं देगा. कौन सा पार्ट अपर है, कौन लोअर है, कौन साइड वाला है, कौन फ्रंट वाला है, कौन पीछे वाला है, ये पता नहीं चलेगा आपको अमीबा में. तो इसीलिए इसका जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है. ओके, देयर इज नो एनी फिक्स्ड प्लेन ऑफ डिवीजन इन अमीबा. बट वहीं पे आप दूसरा जो है दूसरे प्रोटोजोअन में आप देखेंगे कि एक फिक्स्ड प्लेन ऑफ डिवीजन होता है. जैसे लेशमैनिया की बात करें, लेशमैनिया तो अमीबा हो गया. लेशमैनिया में क्या होता है, लेशमैनिया जिसकी बॉडी में जो है ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, लेशमैनिया का यूग्लिना का ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें, और इससे एक फ्लैजिला निकला होता है फॉर लोकोमोशन. ओके,
तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे जो फ्लैजिला नासुना है यहाँ पे इसका माउथ होता है। तो इस तरह से इसकी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर आपको फेस दिख रहा है, ये इंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो यहाँ पे एक फिक्स प्लेन में डिवीजन, इसमें भी बाइनरी डिवीजन होता है लेसमेनिया में, जो कि एक डिजीज कॉज करता है काला आजार, और काला आजार एक फीवर होता है जो कि लेसमेनिया प्रोटोजोआ से ही होता है। बहुत सारे प्रोटोजोआ होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। जैसे मलेरिया डिजीज के लिए जो है प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही काला आजार के लिए लेसमेनिया रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो लेसमेनिया में जो बाइनरी डिवीजन होता है वह एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होता है। जब भी डिवीजन होगा तो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से होगा डिवीजन, यहाँ से आप किसी भी प्लेन से डिवीजन नहीं होगा, एक इस प्लेन पे डिवीजन होगा। तो ये बाइनरी डिवीजन कभी कभी ये पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी डिवीजन इन लेसमेनिया कॉजिंग काला आजार एंड इन बाइनरी डिवीजन इन अमीबा। ओके, अमीबा में बाइनरी डिवीजन और लेसमेनिया में कैसे डिफरेंट होता है। तो आप यही चीज़ बताएंगे कि अमीबा में जो है कोई प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं फिक्स्ड होता है, किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है बॉडी दो पार्ट में, बट लेसमेनिया में एक फिक्स प्लेन ऑफ डिवीजन होता है, और वो प्लेन ऑफ डिवीजन कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे फ्लैजिला निकला होता है। ओके, ये था आपका बाइनरी डिवीजन। अब बात करते हैं दूसरा इसी से रिलेटेड होता है या फिजन का सेकंड टाइप, दैट इज मल्टीपल फिजन। ओके, सेकंड कैटेगरी इज मल्टीपल फिजन। And the process of multiple fission involve the making of more than one or many daughter cell simultaneously. Okay, organisms produce many daughter cell. यहाँ बाइनरी फिजन में आप देखेंगे क्या, that only two daughter cell produce. Okay, but here organism, जिस organism में मल्टीपल फिजन होगा, that organism produce many daughter cell simultaneously मतलब एक साथ जो है बहुत सारे डॉटर सेल में, जैसे आज एक साथ जो है दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, वैसे ही एक साथ जो है मेनी डॉटर सेल जब प्रोड्यूस होगा तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। एंड द एग्जांपल यू विल फाइंड ऑफ मल्टीपल फिजन इज द एग्जांपल प्लाज्मोडियम, द पैथोजन ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम इज द पैथोजन ऑफ मलेरिया, जो कि एक्चुअली जो है एक से स्प्रेड होता है। कौन से मॉस्किटो से, फीमेल एनाफिलीज, बट एक्चुअली फीमेल एनाफिलीज जो है इसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं होता है। फीमेल एनाफिलीज के क्या बोलते हैं, उसके सलाइवा में एक पैरासाइट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। और जब उसके सलाइवा में ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होगा तभी ये मलेरिया डिजीज होगा। इसीलिए नॉट एवरी बाइट ऑफ द मॉस्किटो लीड्स टू कॉज मलेरिया। तो सभी बाइट ऑफ मॉस्किटो जो है मलेरिया कॉज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं रहता है एवरी टाइम। जब प्लाज्मोडियम प्रेजेंट रहेगा तभी जो है वह मलेरिया होगा। ओके, इट इज मेन रीजन ऑफ मलेरिया, इट इज द प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल रीजन कैसे होता है? तो देखिए इसका होता क्या है कि प्लाज्मोडियम की जो बॉडी होती है पूरी सेलुलर होता है ये भी, और इसमें जो इसका सेल मेम्ब्रेन होगा वो ठीक हो जाता है, अपने ऊपर चारों तरफ थिक लेयर प्रोड्यूस करता है, और थिक लेयर प्रोड्यूस करने के बाद inside the membrane there are many daughter plasmodium divide after division, first karyokinesis then cytokinesis, or then surrounding the cytoplasm around them. Okay, पहले जो है इसमें भी सेम वही कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस मेनी पीस में स्प्लिट होगा, और जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सभी न्यूक्लियस जो है अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को कवर करेंगे और सेल मेम्ब्रेन बना लेंगे।
और वो क्या होंगे, डॉटर प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड व्हेन दे बिकम्स मैच्योर, दिस वॉल और दिस मेम्ब्रेन बिकम्स डिसॉल्व, और जब ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाएगा, और ड्यू टू रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन द डॉटर प्लाज्मोडियम कम्स आउट ऑफ द पैरेंट प्लाज्मोडियम। पैरेंट प्लाज्मोडियम से डॉटर प्लाज्मोडियम जो है बाहर आ जाएंगे एंड दे बिकम सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन, द टाइप ऑफ फिशन, asexual mode of